good morning. आवाज आ रही है. ये double sound. It's from my side. Good morning. Good morning. Thank you so much for joining, everybody. अभी थोड़ी सी मेरी echo आ रही है. Is it from my side? I have no idea. Let me take this thing off and close this thing. Okay. And I just want to say that this has been it's a flute by Raju Bankapur from Chicago. And he sent this to me. He said, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ. आपका theme song है Dildiyan Gallan, but I will play the flute and send it to you. So I said, that's really nice of you to do that, you know. Sometime we can play this, sometime we can play the song. So that was nice of him. I want to thank him again. If he's watching, if he's not, maybe he can watch it afterwards. But I want to thank all of you for coming today. Pritam ji, India se hain, or Naz ji and Pradeep ji are from Toronto, Canada. And I'm from New York. So I want to say welcome to everyone. अभी मैं थोड़ी इनकी इंट्रो भी करूंगी. So I want to say good afternoon, good morning, good evening. Depends on where you are. I'm in New York area, and Toronto is still the morning, but in India it's evening now. So other countries it's afternoon maybe. But I want to welcome everyone. And after a long time, Pradeep ji and the group of Pritam ji has come, and Naz ji is coming for the first time. We're going to miss Moini ji and our other co-hosts Nandini ji and Shali ji. They're not here today. I want to say a little bit introduction of Naz ji since she's joining for the first time. Naz originally hails from the Indian diaspora of East Africa, okay, and with roots traced to Gujarat. And she lives in Toronto, Canada, for a few decades now. And she aspired to be a chemist, but ended up as an advertising and marketing consultant. By default, singing is a hobby from youth age, also by default. Considering as a youth, she played bongo with her dad and tabla player in her younger days. So thank you, welcome Nazdi for our program. So nice of you to join. And I still hear my echo. I don't know why. Yeah, I think Pritam ji will have to mute himself. Everybody will have to mute if they're not talking. And then I will introduce Pradeep ji, and he's an electrical engineer by profession, and singing is Pradeep ji's passion. Blessed with sufficient exposure to both Eastern and Western music and culture, he's grown to love all sorts of music. It doesn't have to be old, new, Bollywood, Hollywood, rock, country, or rap in particular, as he enjoys all kinds of music. He hasn't had any professional training in singing, but has been singing since he was a young child. In his high school years in India, he was a part of the school singing group, competing with other school music groups. After moving to Canada, adjusting to new culture, language, and schooling system caused a little setback to his singing. However, the advent of YouTube and heavy encouragement from family and friends to pursue it further, his singing has once again been revived. And it's very nice because sometimes I see his videos all the time on Facebook. Recently I saw quite a few of them. And now I'm going to say, introduce Pritam ji. Actually, Pritam ji ki kya main bataun, Nandini ji introduced us to him almost 2 years ago, and he started a love story which still going on, which Pritam ji will recap after I introduce him. And it's a very nice story. We all want to hear what's next. So इस बार इतना लंबा गैप नहीं करेंगे, पर मैं उनके बारे में क्या बताऊं. By profession, Pritam ji is an electronics and communication engineer who served for 37 years on radar computers, fiber optic, NA, and telecom projects in India as weak as MNCs. But by passion, he is by birth a musician. He grew up following all kind of music available to him around him, with a dream that one day he will release his private song, which he has done. And when he felt that his family commitments are done, he retired himself at an early age of 54 years to pursue his dreams. After nurturing his dream,
of around 45 years, he released his 3 private songs, including one song written by himself. That's it. Not every moment of your life is spent living music. DDG is also very close to his heart, and he says he enjoys telling the stories and songs. So Pritam ji, welcome. And first, I'll ask Naz ji to say a few words, and then Pradeep ji, and then Pritam ji, आपकी story हमने सुननी है, recap थी. तो पहले नाज जी को थोड़ा टाइम देते हैं. नाज जी, please welcome. Like to say a few words. Sure. Thank you, Veena ji. Thank you again, Pritam Singh. I'm really, honored to join this team today. Yes, for the first time. You're right. And है ना कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है. मेरी हिंदी बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल की है. तो इसीलिए I'm going to speak mostly in English, if that's okay. So just wanting to honestly thank you. I am not a trained singer by any means. It's just interest tha, in the family, meaning my dad primarily, and my mom used to sing back in her younger days on the radio. In those days, people sang on the radio. Back in Africa, she would sing on the radio now and then. My aunts used to sing on the radio as well. So I think it's just the interest in the family, and I just play, meaning I sing by ear. मुझको कुछ notes के कुछ पता नहीं है. I'm just कहते हैं ना वो run of the mill singer, bathroom singer कहते हैं, kitchen singer कहते हैं, पता नहीं. So I'm very basic ऐसा तो, but whatever I have is just ऊपर वाले की देन, and I try and do my best. That's all. Thank you. Thank you so much. And Deep ji, आप आएंगे, let's hear from you. Yeah, sure. Thank you. आपने सब कुछ तो बता ही दिया मेरे बारे में. बस मैं इतना ही कहूँगा कि पैशन है सिंगिंग का, और अपने सर्कल में प्रीतम सिंह जी जैसे, नाज जी जैसे और कई कलाकार हैं अपने सर्कल में, तो आई फील ब्लेस्ड विद दैट. और अपना पैशन, जो अपना शौक है, उसको मैं पूरा कर लेता हूँ. कुछ कैरियोकी ग्रुप्स यहाँ पर हैं, उनको ज्वाइन किया हुआ है. वहाँ पर 2-3 बार महीने में हो जाती है मुलाकात, या फिर यूट्यूब चैनल है मेरा प्रदीप अरोड़ा के नाम से, वहाँ पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ अपने सॉन्ग्स. तो बस यही है. अब करेंगे एंजॉय प्रीतम जी की स्टोरी के साथ, कुछ गीत गाएंगे. चलो देखते हैं. जी वेलकम. अभी आपने कुछ अपने बारे में बोले, and then we want to hear the story, the recap very much. Yes, सभी दोस्तों को प्रणाम, नमस्कार. तो संगीत का यही है कि को भी कहते हैं ना कि सपने पूरे होने में देर लगती है, लेकिन वो कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. मेरा सपना जब 45 इयर्स में पूरा हो सकता है, किसी का भी सपना कैसे भी कभी भी पूरा हो सकता है. बस उसको मरने ना दें, उसको दिल में दिमाग में जिंदा रखें, और रात दिन उसको मतलब ख्यालों से ना निकलने दें, चाहे उस डायरेक्शन में करें कुछ भी ना. मैंने भी बहुत साल तक एक्शन नहीं लिया, बट वो दिमाग से निकला नहीं, और कोई पल ऐसा आया कि उसमें सपना मेरा पूरा हो गया. तो अभी जो हम ये शो कर रहे हैं, मेरा शौक है कि लिरिक्स के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, गाने सुनते हैं हम, संगीतकार को जान जाएंगे, सिंगर को जान जाएंगे, एक्ट्रेस को जान जाएंगे, गीतकार के बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं. वो जानने की कोशिश भी नहीं करते कि ये गाया किसने है, और वो बेचारा दबा ही रह जाता है. तो मेरी कोशिश क्या है कि स्टोरी में सुनाओ. तो होता क्या है कि जब मैं स्टोरी सुना के और फिर वो गाना आता है, तो हमारी सबकी आदत होती है कि सामने वाले की गलती पकड़ो कहीं पे. तो सुनने वाले कोशिश करते हैं कि ये इसने कहानी सुनाई है, क्या लिरिक्स वैसे ही हैं, तो इसलिए वो ध्यान से सुनता है, शायद मुझे पकड़ने के लिए कि पॉइंट आउट करे. उससे भी मेरा मकसद पूरा होता है, कम से कम वो ध्यान से सुन तो रहा है, कहानी भी सुन रहा है और गाना भी ध्यान से सुन रहा है, और उससे मकसद पूरा हो जाता है. लेकिन बीच में वीना जी, अपने ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि बीच में थोड़ा सा बता दें कि क्या वो वास्तव में इस कहानी को पसंद कर रहे हैं. ऐसा ना हो कि कोई सिर्फ गाने सुनना चाहता है और उसके लिए कहानी को उसको झेलना पड़ रहा हो. ऐसा हो तो फिर हम कहानी को छोटा करेंगे, या कहानी ना सुना के सिर्फ गाने भी कर दिया करेंगे. वो तो बड़ा इजी पड़ता है, उसके लिए तो मुझे गाने सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती. इसमें क्या, कहानी के हिसाब से गाने ढूंढने पड़ते हैं, कौन सा जाएगा. कभी कभी वो गाना हमने गाया भी नहीं होता, फिर उसकी रिहर्सल बहुत ज्यादा करनी पड़ती है. तो हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन उसमें आनंद कम आएगा.
तो सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कहानी उनको अच्छी लग रही है। तो जिसको याद नहीं होगा उसके लिए और नाज जी के लिए मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ कहानी। हमारी कहानी ये है, कहानी तो पुरानी है, इंस्पायर्ड बाय ए स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड। तो उन्होंने जो बताया था उसके हिसाब से अभी कैरेक्टर में मैं घुसा हुआ हूँ। तो वो ट्रेन में उनको वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या कहें। किसी हसीना ने उनको उलझन में डाल दिया होता है और उनके निगाहों में कुछ गाने शुरू हो जाते हैं। गाने का मतलब क्या है कि वो अपने वो कुछ बोलते हैं निगाहों से और उसको हम बताने का और कोई तरीका नहीं है, तो उसको हम एक गाने के रूप में लेते हैं। वो गाना सुनाते हैं तो हम कहते हैं कि शायद ये सोच रहा है लड़का भी, लड़की भी यही सोच रही है। उनके दिल की हालत को हम गानों से बयां करते हैं इस कहानी में। तो अभी कहानी ट्रेन से चल के, प्लेटफार्म से चल के, फिर चिट्ठियों से चल के, चिट्ठी पहुंचाने के तरीके से लेके, अब चिट्ठी किसी तरह पहुंच गई है वहां पे, ये दिल से आवाज आ रही है। लेकिन वो जवाबी कार्ड जो दे के आए, चिट्ठी दे के आए, वो अभी तक आई थी पिछले एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमारी इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम होगी, तो एपिसोड वो आधा अधूरा सा हुआ था। तो उसमें हमने थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा वो लेके, थोड़ा सा नया लेके, कुछ गाने चेंज करके और हमने ये एपिसोड तैयार किया। तो उसमें किसी को लगेगा कि शायद रिपीट हो गई है। एनीवे, फिर भी एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि गाने कुछ नए होंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसको लग रहा था कि चिट्ठी आएगी, लेकिन आई नहीं और पक्का विश्वास था। तो वो पोस्ट ऑफिस में पता करने के लिए जाते हैं। तो बाई चांस पोस्टमैन नहीं मिला, लेकिन किसी और पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करके वो चिट्ठी मिल गई उसको। और वो उसमें पढ़ी तो उसने जो लेटर्स लिखे थे, बहुत सारे लिखे थे, उसमें उसने ये भी रिक्वेस्ट किया था प्लीज अपना नाम तो बता दो, क्योंकि अभी तक वो रेडियो पे ही उसकी सोचता रहा कि ये जो फरमाइश आ रही है ये शायद उसी लड़की की आवाज है जिसको उसने अपना एक नाम दिया, काल्पनिक सपना। तो सपना के नाम से वो उसको जानता है और जिसका वो नाम जानना चाहता था। तो एक चिट्ठी मिली, उसमें एक तो उसने ये पूछा था कि भाई कब मिल सकते हैं वो बताइए, और अपना नाम। तो उसमें दो ही चीजों का जवाब था। एक तो उसमें डेट लिखी हुई थी कि कब, वो कुछ नहीं लिखा, तारीख डाल दी और उसमें नाम लिख दिया प्रिया। तो बड़ा कंफ्यूजन एक और बड़ा हो गया कि हम तो सपना को याद कर रहे थे, सपना को चिट्ठी, ये प्रिया कौन हो गई बीच में। लेकिन एड्रेस हमारी खुद की लिखाई में था, चिट्ठी हमारे नाम पे थी। तो हमने सोचा कि शायद हमारा अंदाजा जो सपना वाला था थोड़ा गलत था। तो वहां से ऑफिस में, तो वहां चिट्ठी मिलने के बाद में, और क्योंकि जैसे चिट्ठी मिली शनिवार को और उसमें डेट डली है आने वाले सोमवार की, तो बीच में संडे भी है और सैटरडे की नाइट भी है। तो हमारे पास एक ही साधन था कि रात में बैठ के रेडियो पे गाने सुनो, सपना की फरमाइश सुनो, ये सोच सोच के सुनो, और पसंद के गाने आ रहे हैं। तो उस दिन जो गाना आया सपना के नाम से, क्योंकि फरमाइश में नाम बताते थे, जो 10 बजे से 11 बजे 1 घंटे का प्रोग्राम होते थे, दो आधा घंटे के, एक बेला के फूल होता है विविध भारती पे, ऐसे 2 प्रोग्राम होते थे। तो उसमें जो गाना सपना की फरमाइश पे आया, अब वो हम सुनते हैं नाज की आवाज में, प्लीज। ओके, आज नाज जी, हाँ हाँ, Thank you. रहेगा इश्क खारा खाक में मिला के मुझे, हुए है इब्तिदा में रंज इंतहा के मुझे। भी जा रात ढलने लगी, चांद छुपने चला, भी जा रात ढलने लगी, ओ चांद छुपने चला, ओ भी जा।
ढलने लगी ओ चांद छुपने चला ओ आ बेजा सितारों ने मुँह फेर कर कहा अलविदा हम सफर सितारों ने मुँह फेर कर ओ कहा अलविदा हम सफर चला कारवां अब चला बेजा रात ढलने लगी चांद छुपने चला ओ आ बेजा रात ढलने लगी ओ चांद छुपने चला ओ आ बेजा उफ़क़ पर खड़ी है शहर अंधेरा है दिल में इधर उफ़क़ पर खड़ी है शहर ओ अंधेरा है दिल में इधर वही रोज़ का सिलसिला बेजा रात ढलने लगी चांद छुपने चला ओ आ बेजा रात ढलने लगी ओ चांद छुपने चला ओ आ बेजा Thank you so much. Beautiful. Very, very melodious. And आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की है. Very nice. Very enjoyed it so much. Very nice comments. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा। हेलो, आवाज आवाज आ रही है ना? ओके। हाँ, बहुत अच्छा गाना। तो ये सुनने के बाद में हमें ये विश्वास हो चला कि अब इसको हम प्रेम का नाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो एक तरफा हमारा सपना ही था। अभी इसको लगने लगा कि नहीं, अब ये दोनों तरफ का, तो इसको हम प्रेम का नाम दे सकते हैं। और यही सोचते सोचते हमने संडे को किसी तरह बिता दिया। रात हुई तो फिर वही, क्योंकि अब सोमवार को जाना है सुबह। तो रात को एक रात और हम उसको और पकाने के लिए छत पे बैठ गए रेडियो को लेके। हमारा यही था कि आसमान की छायाओं में कभी चंद्रमा, कभी सितारे, तो कभी कुछ नहीं है, फिर भी बैठ जाओ, जाके महसूस करने लगो सपना को, कि सपना यहीं कहीं आसपास है। तो उस दिन जो फरमाइश आई, अब वो सुनते हैं। हाँ जी। सपना की फरमाइश आई उस दिन, और सिर्फ लिरिक्स पे ध्यान देना, क्योंकि उस दिन उसने मेल गाने को फरमाइश में भेजा था। एक सेकंड प्रीतम जी, मैं सबको रिकैप करना चाहती हूँ। यहाँ पर भी लोग हेलो। अभी ज्वाइन जी। कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रीतम जी फ्रॉम इंडिया, Pradeep ji is from Toronto, Naz ji is from Toronto also, and I'm from New York. I just want to welcome everybody who just joined now. That Pritam ji has started a story like I would say 1.5 years ago, actually his friend's real story about his friend. So it's a love story, and he's continuing it, having songs in between. So abhi Naz ji ne jo gaya hai, that's part of the story, and now continue Pritam ji. अभी मैं सुनाता हूँ अगले वाला गाना। जी।
क्या बोलें? स्टोरी तो बहुत जबरदस्त हो रही है, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग। देखो अभी तक बातें नहीं हुई हैं, दिल ही दिल में तो चल रहा है। में चल रहा है। चंद्रमा का सितारे का सहारा लेके, और कुछ रोल चिट्ठियों ने और कुछ वो चाय वाले चाचा ने प्ले किया। वो हनुमान जी वाला है ना, जो मिलाने का काम करते हैं, वो चाचा ने थोड़ा सा इंटरेस्ट से और ईमानदारी से पूरा कर दिया। तो ये फरमाइश सुनने के बाद ठीक से नींद तो आनी ही नहीं थी, और रेडियो भी 11 बजे तक का ही साथ देता था। तो उसके बाद थोड़ी सी नींद लेने की कोशिश की और ऑफिस पहुंच गए जल्दी में, ताकि थोड़ा सा काम जल्दी निपटा के और निकलना है शाम की मुलाकात के लिए। तो वहाँ जाके बॉस को अपडेट दिया कि क्या क्या हुआ इन 2 दिनों में, शनिवार इतवार में। और तो उन्होंने तो ब्लैंक छुट्टी साइन करके रखी हुई थी कि कभी भी जाओ, चले जाओ, बस बता के चले जाओ। तो बस हम दूसरे दिन शाम को स्टेशन में पहुंच गए और सीधे हम चाचा के पास गए उनका धन्यवाद करने के लिए। मन तो कर रहा था उनको जप्पी पालो और पैर छू लो और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वही है कि पब्लिक भी होती है और थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने हाथ जोड़ के नमस्ते किया, और जैसे उनके पास गए उन्होंने कहा कि 11 बजे का समय है बाहर आने का, वेटिंग रूम में है। तो अच्छी खबर थी। और फिर बैठ गए हम इंतज़ार करने में, और सही 11 बजे ओ आ गई सामने। तो जो बेंच उनका फेवरेट बेंच था उस पे आके वो बैठ गई। तो हमने हेलो भी नहीं किया क्योंकि थोड़ा डर भी था। आज का टाइम नहीं था कि कुछ भी कह लो, और मोबाइल भी नहीं थे, तो बड़ा डर लगता था कि बड़ी मुश्किल से यहाँ तक बात पहुंची है, कहीं बिगड़ ना जाए। तो वहाँ बैठे बैठे जो भाव थे वो अब हम सुनेंगे प्रदीप जी से। सामने बैठ बैठ के हमारे दिल से आवाजें आ रही थी। थैंक यू प्रीतम जी। चलो। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा
महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अनिल चौहान। थैंक यू।